Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. Myself Dr. Shipra Garg. और आज मैं रिप्लाई करने वाली हूँ कुछ ऐसे कमेंट्स को जो मेरे YouTube पे बहुत ज्यादा रिकरेंट पूछे जाते हैं and I'm going to answer few such of those comments. So without any further ado, let's get into the video. सबसे पहली चीज तो thank you so much. I'm so overwhelmed that you guys really like my video on Charak Samhita so much. I'm so much overwhelmed whenever I read these comments, and everyone was like, ma'am, when are you uploading more such series and when are you uploading more chapters of Charak Samhitas or more Samhitas, Shushrut and all. And I know I haven't uploaded it, but when I had uploaded my first video, I remember I just wanted to help you guys because I know there are very less YouTube channels out there that will help you to study Samhitas by yourself. So by that perspective, I started my YouTube channel and I uploaded the videos. But I'm so grateful that you guys really liked the video, and I got so many comments daily, so many mails, and I just wanted to say that I'm going to upload more and more series. I'm going to upload whole Charak Samhita series, but I just need some more time because of some technicality. Right now I have some issues with my phone and with my storage and all that stuff. So I'm pre-planning to record some videos of some sthanas like Viman Sthan, Nidhan Sthan, Sharir Sthan, all that stuff. I'm right now working on it, but ट्रस्ट मी आई नीड मोर टाइम. बट वेरी सून मैं आप लोगों की ये सारे जो आप मुझ चाहते हो कि मैं समिता सीरीज अपलोड करूं, मैं पक्का करूंगी. ना मेरे को नॉलेज है समिता सीरीज की, आई विल ट्राई टू शेयर दोज नॉलेजेस विद यू एज वेल. थैंक यू सो मच. सेकेंड क्वेश्चन by this. First of all, thank you so much that you are loving my content, and I'm very grateful that some of you guys think about me so much, and I really wanted more subscribers. I'm being honest with you, but right now I'm just going with the algorithm of the YouTube. I don't know either YouTube is showing my video on search result or not, and to how many hundreds of people, and I am not pretty sure about that. But I don't know if I'm going to promote my videos or maybe in future, because everyone needs subscribers and views, of course, because I'm putting so much hard work on my YouTube videos. But YouTube is showing me that you need to do more hard work, girl. So I will do that and I will come up with more videos. So maybe one day YouTube will show my video on search result without promotion. But thank you so much. Next comment. First of all, thank you so much that you are liking my video, and I hope that you like my video in future as well. Second thing, yes, I think if you are someone who really wanted to become a doctor, and despite of the fact that you are becoming a allopathy doctor or an Ayurvedic doctor, you must go for BMS. I know nowadays people are more into Ayurveda, they are believing in it, and they are trying the medications and also the other procedures, Panchakarma therapies and all other therapies that we have in Ayurveda. It's just that you need to, if you wanted to go for BMS, first you need to trust Ayurveda. Second, you need to trust the process. Third, if anyone bully you, you don't just pay attention to them. You just need to focus on yourself. That whatever you are doing it right. You are doing it for yourself. जब मैंने BMS की थी, at that point of time, I gave a separate exam for BMS, and then I got a rank and then got admission in my course. Nowadays, नीट के थ्रू एडमिशन हो रहे हैं, एंड अगर आप एक अच्छा स्कोर लाते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट अ सीट इन BMS. ऑल्सो देयर आर 2 colleges of BMS in Delhi that I wanted to tell you. First is IP के थ्रू go for Chaudhary Brahm Prakash, and for DU then go for Tipya College. These are the 2 colleges that are in Delhi right now. Both are good. BMS एक बहुत अच्छा कोर्स है. You just have to believe in it and go for it. Next question है, और ये क्वेश्चन बहुत सही है. मुझे क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगा कि यस, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में है कि BMS की आयुर्वेदिक मेडिकेशन इतना टाइम क्यों लगाती है डिजीज को ठीक करने के लिए. सो पहली चीज तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ज्यादा टाइम लगाती है बीमारी को ठीक करने के लिए. उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत टाइम लगाती है, सो आई वांटेड टू गिव यू एन एग्जांपल. अगर आपको पेन हो रहा है, अगर आप एक एलोपैथी मेडिकेशन लेते हैं तो वो आपका पेन सबसाइड हो जाएगा, बट दैट विल नॉट ट्रीट योर डिजीज. वो आपकी डिजीज को ठीक नहीं करेगा. वहीं अगर आप एक आयुर्वेदिक मेडिकेशन लेते हैं तो वो आपके पेन को ठीक नहीं करेगा. शायद वो आपके पेन को शायद नहीं ठीक कर पाए, लेकिन वो इवेंचुअली आपकी डिजीज को जरूर ठीक करेगा. इसके लिए एक एग्जांपल है कि अगर आपको एक पेड़ की एक शाखा काटनी है, सिर्फ एक शाखा, तो आप उसको 1 घंटे के अंदर काट सकते हैं, 2 घंटे के अंदर काट सकते हैं. बट अगर आपको उस पेड़ को जड़ से निकालना है तो आपको उस पेड़ को निकालने में 1-2 दिन या 3 दिन लग सकते हैं.
यही डिफरेंस है आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिकेशन का। मान लो कि आपको अस्थमा है, तो एलोपैथिक मेडिकेशन क्या करेगा, वो आपको नेबुलाइजर देके, आपको मेडिकेशन देके आपको अपनी लाइफ जीने में आसान कर रहा है बस। लेकिन वो आपको अस्थमा को क्योर नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि 1-2 साल नेबुलाइजर लेने के बाद तीसरे साल शायद आपको नेबुलाइजर लेना नहीं पड़ रहा बिकॉज अब आप पहले से बेटर फील कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। बट आयुर्वेदिक में ऐसा हो सकता है कि मे बी आप मेडिकेशन अगर कंटिन्यू करते हो तो मे बी 1 ईयर और 1.5 ईयर बाद ऐसा जरूर आए कि आपको अस्थमा के लिए कोई मेडिकेशन लेनी ना पड़े। सो इट्स जस्ट अ प्रोसेस, बिकॉज जो चीज हमारे अंदर से जिसको पनपने में, जिस बीमारी को होने में इतना टाइम लगा है, उस बीमारी को शरीर से बाहर जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। सो इट जस्ट अप टू यू। इसीलिए ये मिथ फैल गया है कि आयुर्वेदिक मेडिकेशन बहुत टाइम लेती है। ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसी मेडिकेशन भी है जो बहुत जल्दी काम करती है। जैसे कि आपने अगर देखा हो किसी को कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन के लिए जो हमारे यहाँ पे लेग्जेटिव्स हैं वो एक ही रात में आपको जो है वो रिलीफ देते हैं। जबकि कई बार ऐसा होता है कि एलोपैथिक मेडिकेशन के लैक्टुलोज सिरप और ऐसे मेडिकेशंस भी आपको उतनी जल्दी आराम नहीं देती जितनी जल्दी एक आयुर्वेदिक चूरन से, एक आयुर्वेदिक पाउडर से जो एक रात में रिलीफ मिल सकता है। तो ये भी आयुर्वेदा का ही एक पार्ट है। अगर हमारे को किसी को एकदम एलर्जी हो जाती है, जो आईजी है उसका एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है, स्नीजिंग हो रही है, आपको रनिंग नोज हो रही है, इचिंग हो रही है बहुत ज्यादा नोज और माउथ के पास, उसके लिए भी हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिकेशन है जो आपको सिर्फ 2 टैबलेट सडन रिलीफ दे सकती है उस टाइम के लिए, उस एलर्जिक रिएक्शन से। वो भी आयुर्वेदा का ही एक पार्ट है। जस्ट दैट यू हैव टू बिलीव इन आयुर्वेदा। सिर्फ ये सोच के कि बहुत ज्यादा टाइम लगाती है, ये सोच के मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट इट आई वांटेड टू से कि आयुर्वेदा जो है वो क्यों इतना टाइम लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है कि आयुर्वेदिक मेडिकेशन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि हाँ कंप्लीटली नहीं होते, कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशन के साइड इफेक्ट भी होते हैं। क्योंकि जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है वो प्लांट ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन और मिनरल ओरिजिन, इन 3 ओरिजिन से बनी होती है। तो कई बार ऐसा होता है जैसे प्लांट्स हम अपने मेडिकेशन में यूज करते हैं जो कि जिनका ज्यादा अमाउंट हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है, बट हम उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में उसका बहुत ही मिनिमम डोज डालते हैं। आप कह सकते हैं आपकी भाषा में चुटकी भर, जिससे उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। उसकी जो औषधीय गुण है वो उस मेडिकेशन में आ जाते हैं और वो आपको हेल्प करती है। वहीं पे अगर आप उस मेडिकेशन को बिना किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के कंसल्ट के लेते ही रहोगे तो वो भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको वो प्रॉब्लम दे सकती है। दूसरी चीज, हम उसके अंदर रस औषधियां डालते हैं, तो रस औषधि डालते हैं या फिर हम उसके अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स डालते हैं अगेन जिसका अगेन एक टॉक्सिसिटी हो सकती है, बट हम उसको उसी अमाउंट तक यूज करते हैं जिसमें उसके औषधीय गुण हो। आप लोगों को नहीं पता होता उसके अंदर जो कंटेंट डले हैं उसका कितना औषधीय गुण है, कितनी टॉक्सिसिटी है। तो मेक श्योर कि आप अगर कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकेशन को बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि उसके अंदर कोई ऐसा टॉक्सिक एलिमेंट तो नहीं डाला हुआ। दूसरी चीज, जैसे मिनरल ओरिजिन के ड्रग्स होते हैं जिनको हम पहले अच्छे से प्यूरिफाई करते हैं और फिर उनको हम अपनी मेडिकेशन में यूज करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है वो ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो हमारे को उतनी बेनिफिट नहीं देती जितनी वो देनी चाहिए। तो उस सिनेरियो में भी वो हमारे को हार्म कर सकती है। और अगर ये एक मिथ है आपके मन में कि आयुर्वेदा बहुत ज्यादा टाइम लगाती है, तो आई होप मैंने वो भी क्लियर किया होगा। और एक ये भी मिथ कि आयुर्वेदा की तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, तो वो भी मैंने आपको क्लियर किया होगा कि साइड इफेक्ट इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग और आप उसको कितने लंबे टाइम तक ले रहे हो। साइड इफेक्ट एलोपैथिक मेडिकेशन के भी होते हैं अगर आप उसे लंबे टाइम तक लेते हो तो, जैसे कि स्टेरॉइड मेडिकेशन या फिर कैल्शियम कंजम्पशन भी। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो 8-8 महीने कैल्शियम के टैबलेट्स खाते रहते हैं सोच के कि उनके अंदर कैल्शियम की कमी है, एंड इवेंचुअली दे केम अप विद अ किडनी स्टोन और सम सॉर्ट ऑफ स्टोन हियर एंड देयर। So that's it for today's video. I just wanted to answer some of these few questions that has been asked again and again in my comment section, and I just wanted to hop in there and just answer these questions. So that's it for my today's video. If you like this video, don't forget to like and also subscribe to my channel, the bell notification, so you get notified every time I upload a new video. And if you're watching this face for the very first time, hi, myself Dr. Shipra Gar, and I upload on videos on health related topic, so make sure you subscribe me. And now see you in my next video. Bye.